Okay, students, very good afternoon to everyone. And the last lecture we saw the problem on inventory turnover ratio. Now this is the third part of the last part of your material chapter, that is store ledger. Now store ledger is of course very important the part as per the material management is concerned. The ledger, that is we saw all these systems, that is about the inventory control and the material control. Okay, different methods, this thing, different stock level methods we see. Okay, in detail with economic order quantity we see with this thing. Now there is one stock ledger. Now this stock ledger is prepared by the store department, and this is the proper format of the store ledgers. With the help of the stock ledger, you can value your stock. That means at the closing date of this particular store ledger, you can find out, or you can easily find out the in terms of units. You can find out in terms of value also at the end. Therefore, this, if you see the format of stock ledger, now what is the content of the stock ledger? You just on the screen, you just see on the screen, this is the format of the stock ledger. Now, stock ledger, in the stock ledger, one is a right hand side. If you see this, the folio number is given. Then code number is given, the particular material code. Then a description about the material that is given in the particular format. Then we already know how to calculate the stock, different stock level, that is a maximum level, minimum level, reorder quantity. That again you have to mention here, because see, this is oral picture of your inventory, where you comes to know what is the maximum level. मुझे कितना ज्यादा कितना मेरे स्टॉक में होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, व्हाट इज माय रीऑर्डर लेवल, कितना रीऑर्डर होना है, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, ये सब आपको कैलकुलेशन करने के बाद में यू हैव टू मेंशंस. Okay, that is you have to required to specify also, because that is not different, because in a case of the organizations with the experience of your last 5 to 10 years experience, you will come to know what is the production requirement, what is the expected the production, what is the material required, and as far as the inventory is concerned, what is your required to keep minimum inventory, maximum reorder level, and reorder quantity. So the data should be specified in stock ledger. If you see the format of your stock ledger, then you will immediately comes to know, okay, what is that? Okay, date, document number. Document reference number means for example, once you issue the material, or once you receive the material, receipt means you purchase. Okay, you can take it from the different department. For example, purchase department से आपको store department में आया, and store department से issue किधर होगा, production department में जाएगा. Yes or no? So directly purchase करते हैं, purchase आप supplier से करेंगे, supplier purchase करने के बाद में directly material कहाँ पे आएगा, store में आएगा. Okay. So when it is come to store, you have to mention the receipts. Now there are two terms you have to, or two information you require to kept in that. The one is, first is a quantity and second is a value. The quantity, how many units in kg or units or tons, whatever difference description of that particular items, that you have to consider, mention here. Then value, then in case of the date, you have to mention the date of purchase or date of issue. Okay, then document number, reference number means the invoice number of invoice of supplier, or when you transfer notes to production department, you have to mention in case of the issue. Whatever you purchase, okay, or what goods comes in, that is a receipt, and what goods goes out, that is your issue. Receipt minus issue, that come in closing stock. For example, I would like to say, for example, मैंने 7 September 2021 को मैंने purchase किया 10,000 units of rupees 1 lakh. रेफरेंस नंबर है 1234. तो मैंने क्या करूंगा, इधर 7 September लिखूंगा. ओके, यहाँ पे मैं करूंगा आपका, ओके, यहाँ पे करूंगा मैं मेंशन डेट.
यहाँ पे मैं डेट मेंशन करूंगा, दैट इज यू कैन मेंशन योर 7/9। यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर दूंगा मेरे इनवाइस का, अगर 1 2 3 मैंने परचेस किया है तो 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करूंगा, कितना क्वांटिटी मेरा है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, 10,000 यूनिट, और उसका वैल्यू इधर मैं लिखूंगा 1 लाख। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल इमीडिएटली ऑन सेम डे आपको रिक्वायरमेंट आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि दैट मींस दे रिक्वायर्ड 500 यूनिट्स, कितना 500 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, ओके, एंड दैट इज रिक्वायर्ड, यू कैन, फॉर एग्जांपल दिस इज 10,000 यूनिट्स at the rate of 10, the value of is 10 rupees, okay, therefore on the 7th 9 immediately you draw one note, transfer notes to the production department, for example 011, एंड इश्यू कॉलम में इधर तो नहीं आएगा, इश्यू कॉलम में आपने कितना किया 500 at the rate of 10 means this is comes to 5,000. Immediately you can calculate the closing stock. Closing stock कितना है स्टूडेंट, कितना आया 10,000 minus 500, that is comes to 9,500. 1 lakh minus 5,000, that is 95,000. 95,000. Now on order queue, that is specifically for which method you are applying for the valuation of stock. There are different methods of valuation of stock, you know well, that is a FIFO method, LIFO method, weighted average cost methods. Weighted average cost method, they may perpetual, periodical, a different method of valuation of the stock. So which method you are applying, whether you are applying a FIFO method for the goods, okay, or you can refer that means to LIFO methods or weighted average cost method for valuation of this, that you have to identify, and accordingly that means it's called order queue is required. That means you always have to give the order queue also, whether it's a 1 2 3 4 as per the requirement, okay. Now if you go for the format, this is the stock ledger format, okay. And afterwards, if you go, that's the material. What happens sometimes? इसका मतलब ऐसा नहीं कि that means अगर हम supplier से purchase करते हैं, if you purchase the material from the suppliers, that means it is not on non-returnable basis. ऐसा कभी नहीं होता है. Because whenever you required material, that at times definitely that means you can return it, subject to the quality of the material, subject to the quality, what is the configuration, number of quantities required. अगर आपको ज़्यादा कुछ मिला तो you can return to the vendor also. Okay, you can return the material, can be returned to store also. Okay, there are many different returns and storage. So return and storage का how to record in store ledger, that is again the question. अगर हमें अपने अभी देखा कि अपने क्या देखा कि दैट मींस अगर में हम परचेस करते हैं, रिसीव करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इश्यू करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, इश्यू टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करते हैं मटेरियल तो हम रिकॉर्ड करते हैं। रिटर्न एंड शॉर्टेज भी केसेस रहते हैं इसमें स्टोर लेजर में। तो हाउ इट इज कंसिडर्ड इन स्टोर लेजर अकाउंट, दैट यू अगेन गोइंग टू लर्न दिस। द फर्स्ट थिंग इज मटेरियल्स रिटर्न बाय स्टोर टू वेंडर। जो हमें मटेरियल्स हमें परचेस किया था वेंडर से, अभी उसमें से फॉर एग्जांपल हमने रिक्वायर्ड उसको बोला था कि 10,000 दो, तो उसने 11,000 रुपीज 11,000 यूनिट्स दिया, एक्सेस दिया, या उसने 10,000 यूनिट्स दिया, उसमें से 500 गुड्स जो थे वो बराबर नहीं थे, बराबर ना, या डिफरेंट थे मटेरियल से, या कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम था, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें ये करेंगे स्टूडेंट कि सच अ रिटर्न should be enter in the issue column, because there are two column only. One column for receipt, that is the goods what comes in, and issue means goods what goes out. तो अगर कुछ goods आपको return करना है तो that is obviously come in the issue column. तो उन्होंने बोला देखो such a return should be entered in the issue column and valued at the invoice price. Whatever the invoice price is given, that you have to value on that invoice price. जो purchase से हमने किया था वही उसको value करते हैं आप। Easily you can find out the closing of that particular date. The difference between store ledger price which included in freights and invoice price is charged as overhead. Okay, okay, whatever this ledger price
which is included the freight value is also included, and invoice price is charged as overhead. Whatever the invoice price is, that is considered the overhead. Now material return to store. Material return to store. Okay. Return to store means what? Such a return are enter the receipt column, because मैंने अगर मेरा स्टोर डिपार्टमेंट है और मैंने अगर कुछ मटेरियल मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करने के बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने देखा कि कुछ मटेरियल है वो बराबर नहीं है, तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, स्टोर को दिया. There are three things. Just understand. What is that first one? Just see. No, मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, ये ये अपना स्टोर डिपार्टमेंट है. स्टोर डिपार्टमेंट, ये वेंडर है, और ये अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम वेंडर से परचेस करते हैं और वही लेने के बाद में हम यहाँ पे जाते हैं, इस करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, तो वेंडर से हम परचेस करते हैं, तो वेंडर से अगर कुछ है तो वेंडर को हम क्या करते हैं, रिसीव रिटर्न करते हैं. वैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा. यहाँ पे हम इन स्टोर डिपार्टमेंट में हम स्टोर लेजर प्रिपेयर करते हैं. हम स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर लेजर प्रिपेयर करते हैं. तो ऐसे इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अगर स्टोर को रिटर्न आया, तो ऑफकोर्स स्टोर डिपार्टमेंट के लिए क्या है, रिसिप्ट है. तो कौन से कॉलम में आएगा, कौन से कॉलम में आएगा, रिटर्न है इन द कमिंग रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम में आएगा. अंडरस्टैंड? देन दे विल वेयर फ्रेश परचेस एट द ओरिजिनल इश्यू प्राइस. और उसमें से आप अगर एक्सेस है तो दे कैन रिटर्न टू द स्टोर. अगर कुछ डिफेक्टिव है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को देगा, स्टोर डिपार्टमेंट वेंडर को देगा. तो पहला इसमें रिसिप्ट आएगा, उसके बाद में इश्यू आएगा. ऐसा that what essence is based on the simple principle, goods what comes in, goods what goes out. Whatever goods comes in, that is come in the receipt column. Whatever goods goes out, that is come in there, that is come in the issue column. Okay, now then next one is a shortage during the physical verification. वो sometimes होता है ऐसा. For example अगर हमने इसने किया, फॉर एग्जांपल मुझे इश्यू किया, दैट मीन मैंने परचेस किया वेंडर से, लेकिन वेरीफाई नहीं किया और बाद में काउंटिंग करने के लिए गए तो उसमें शॉर्टेज आया. ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय समटाइम्स एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना स्टूडेंट. द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी ट्रीटेड लाइक एन इश्यू. एनी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी ट्रीटेड लाइक एन इश्यू. इश्यू में कंसीडर करो, एनी फिजिकल वेरिफिकेशन में रहेगा तो, एंड एंटर इन द इश्यू कॉलम एंड वैल्यूड एट द रेट एज पर द मेथड अडॉप्टेड. जितना भी शॉर्टेज रहेगा दैट यू हैव टू रिकॉर्ड इन द इश्यू कॉलम. ओके, इश्यू कॉलम में रिकॉर्ड करो. इश्यू कॉलम में कौन से प्राइस से करेंगे, जो प्राइस अपने जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है. इफ यू आर अडॉप्टिंग द फीफो मेथड, तो फीफो मेथड के रेट में जो रेट है वही रेट उसको अप्लाई करके वैल्यू करो. वेटेड एवरेज में है तो वेटेड एवरेज का रेट फाइंड कैलकुलेट करके आपको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा. वो प्रैक्टिकल सम में लेने वाला हूँ, कंबाइन ऑफ ऑल दिस मेथड, तभी जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. आफ्टर दिस आई एम टेकिंग द प्रैक्टिकल सम, दैट विल बी डेफिनेटली इजी टू अंडरस्टैंड. एक्सेस ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन. एक्सेस ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन, शॉर्टेज का तो हमने बोला कि इश्यू कॉलम में लिखना चाहिए और जो रेट एप्लीकेबल है वो रेट से करना चाहिए. जो लॉट में उसने परचेस किया था वो लॉट का रेट हमें अप्लाई करना चाहिए. फीफो मेथड रहेगा तो फीफो मेथड से, वेटेड एवरेज कॉस्ट रहेगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट से अगर करना है. लेकिन अगर एक्सेस मटेरियल हमारे पास आया तो ऑफ कोर्स एक्सेस जो मटेरियल हमें आया है दैट इज कंसीडर्ड एज अ रिसिप्ट कॉलम. तो एक्सेस ऑन वेरिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड एट द लेटेस्ट परचेस प्राइस से इन द रिसिप्ट कॉलम में आपको मेंशन करना है. अंडरस्टैंड? सो अगर एक्सेस रहेगा तो रिसिप्ट कॉलम है, लेटेस्ट प्राइस से कैलकुलेट करो, एंड शॉर्टेज रहेगा तो इश्यू कॉलम में करो, whichever the method is applied to you. Understand? So this is your returns and shortage, how it is to be
recorded in store ledger account. That is accounting treatment for returns and short age in store ledger account. So now all the explanations that is over, and now we moving toward the practical sums. अब एक practical sum देखेंगे, तो practical sum से आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा student. Okay, so I'm sharing one practical problem. Just a minute. Is it visible, student? Disha? Yes, sir. थोड़ा ब्लर है, लेकिन पढ़ सकते हो ना? Read this problem carefully, then we'll start.
Okay. From the following details, find out closing stock of company as per FIFO method and weighted average method perpetual by preparing the store ledger. Now, the information is given to you. बराबर ना? Information is given to you. Now, in this case, we're going to study only the two methods. One is the FIFO method and weighted average method. Normally, this is the first example I will give you, FIFO method and weighted average method. Then we'll go for the individual one. Again, I will take one problem. Okay, first March balance 400, that is the opening balance. Then first March, price is 40 rupees. Second March, purchase for 300, price at 550. Then 4th March, 200, price at 15. Price at 15. Okay. Then 5th March, there is a sale. Sales means issuance to them. 400 at the rate of 20. 10th March, 100 at the rate of 22. 17th March, again you purchase 300 at the rate of 20. And 20th March, again you issue 250 at the rate of 21. On 18th March, 40 units were found damaged and had to be discarded. Okay, so there should be entry of 40 units of will found discarded. No, calculated weighted average up to the 2 decimal point. Now, just see it. This one. Okay, so we'll start with the solution. Everyone, please take the pick of this problem. इसका पिक लेके रखो स्टूडेंट. मैं आपको एकदम सिंपल मेथड से पढ़ाऊंगा. डोंट वरी. अगर इस बीच में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी. नो प्रॉब्लम. हम पहले FIFO मेथड से करेंगे एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करेंगे. देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन. गो फॉर द सॉल्यूशन. स्टोर लेजर अकाउंट. FIFO method. FIFO method. Okay.
तो मैंने पहला स्टोर लेकर रखा हूँ। Okay. Now what is the format? Format क्या है स्टूडेंट्स? ये देखो पहले, पहला आता है डेट, then purchases, परचेसेस में मैंने आपको पहले बोला कि यूनिट्स, रेट, उसके बाद में आएगा रिसिप्ट्स। इश्यूज में फिर से 3 कॉलम, एंड बैलेंस में भी 3 कॉलम, है ना? इजी, बहुत इजी होगा। देखो, ये हो गया आपका FIFO मेथड से। FIFO मेथड क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द FIFO मेथड? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIFO मेथड? व्हाट इज द FIFO? बोलो, व्हाट इज द FIFO मेथड? Screen is not visible. Okay, just a moment. Huh? Now it is visible. It is visible, student. Okay, thank you. Yes, yes, correct. FIFO method. Very good, very good. FIFO method means what is? First in, first out. First in, first out means क्या student? What is the first in, first out? जो मटेरियल हमने परचेस किया है उसको ये पहले इश्यू करने का है, बराबर है? बिकॉज लेटेस्ट वाला जो मटेरियल आपका रहेगा वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, ओके, क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। तो पहले इसका मतलब क्या है स्टोरेज का? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब क्या है कि वट एवर यू परचेस फर्स्ट दैट इज इश्यू फर्स्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे फर्स्ट आया उसको ये फर्स्ट इन आउट किया, ओके, सेंड किया प्रोडक्शन के लिए, अंडरस्टैंड? सो इसीलिए see the format, just remember this format. The format is divided into date, purchases, issues, balances, और तीनों में भी कॉमन है यूनिट, रेट, रुपीज, यूनिट, रेट, रुपीज, यूनिट, रेट, रुपीज। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड। चलो वन बाय वन। व्हाट इज द फर्स्ट? वेरी सिंपल, व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट मार्च 2018, मार्च 2018 क्या था डायरेक्टली? इसमें क्या था? ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस है ना? जस्ट ना स्टूडेंट,
स्टूडेंट सॉरी यार, स्टूडेंट कॉलेज से फोन था एंड दैट इज अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। लास्ट डे ना एडमिशन प्रोसेस के लिए स्टूडेंट आर आल्सो आस्किंग रेगुलरली कितना कभी है, कौन सा डेट है, लास्ट दिन लास्ट डेट रहेगा तभी सब लोग जागते हैं, उसके पहले सब दे आर listening. Okay, anyway, that means on first, see, first March, there is a balance, that is the opening balance of how much opening balance is student? Balance of 400. And what is the rate of that? What is the rate of that? 14. So multiply this 400 into 5,600. 5,000. Then what is the next date? The next thing is the 2nd March 2018. 2 मार्च 2018 क्या एक्टिविटी हुआ है? 2 मार्च को हमने परचेस किया, तो परचेस कॉलम में आएगा 300 यूनिट्स। कितने में परचेस किया हमने? 50 रुपीज में परचेस किया। 50 रुपीज में परचेस किया तो कितना होगा स्टूडेंट? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 4,500 इज इक्वल टू 4,500। ओके स्टूडेंट, तो 4,500 आ गया। नाउ स्टूडेंट यू टेल मी व्हाट इज द बैलेंस एज ऑन 2 मार्च। तो 2 मार्च में क्या आएगा स्टूडेंट? पहले ये आएंगे, ये पहला जो लॉट हमारा क्लोजिंग बैलेंस का था वो आएगा। उसके बाद में ये परचेस का जो हमने किया है, तो कितना हुआ स्टूडेंट? ये टोटल इसका देखा तो कितना बैलेंस हमारा क्लोजिंग स्टॉक में है। ओके, तो इसको पहले अंडरलाइन करेंगे, बड़ा वाला अंडरलाइन करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, उसके बाद में सेकंड डे का ट्रांजैक्शन जो है उसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो ये 2 दिन का ट्रांजैक्शन हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में स्टूडेंट व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? 4th मार्च 2018। क्या किया 4th मार्च को? व्हाट इज 4th मार्च को क्या किया हमने स्टूडेंट? परचेस किया, फिर से परचेस किया हमने 200। कितने में परचेस किया? रेट ऑलरेडी गिवन 15 में ही परचेस किया, तो 15 कितना होगा? 15 इंटू 200 कितना होगा? 3,000 रुपीज। हाँ, 3,000 रुपीज। अभी देखो, अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा मुझे बताओ। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक में देखो अभी 3 कैटेगरी के मटेरियल आपके पास है। एक तो 414 वाला, 315 वाला, 215 वाला। तो पहला ए जो 2 है वो एज गुड एज कॉपी करेंगे उसको। ये दोनों तो ऐसे आए, ओके। तो ये जो 400 वाला था, ये 400 ये जो था लॉट, इसका लॉट जो था ये हमने क्या किया? इधर लाया, क्योंकि अभी ये हो गया एक लॉट। ओके, इज इट ओके? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट? 3rd मार्च को, 4th मार्च के वैसे आया, 5th मार्च को। नाउ 5th मार्च को क्या किया? व्हाट इज द 5th मार्च को क्या है स्टूडेंट? 5th मार्च को 5th मार्च 5th मार्च को हमने क्या किया है? इशू किया है। इशू कितना किया है? व्हाट इज द इशू? 400 एट द रेट ऑफ 20। ओके चलेगा, एट द रेट ऑफ 20 दिया चलेगा। लेकिन स्टूडेंट देखो अभी 400 को
पहला हम FIFO मेथड यूज कर रहे हैं, तो पहला हम कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ये वाला 400 वाला। तो ये आएगा 14 बराबर ना, एट द रेट ऑफ 14, तो कितना आएगा 5000। हमने क्या किया, 400 था बराबर है, लेकिन कौन सा यूज करूंगा मैं, 414 वाला, ये लॉट वाला मैं यूज करूंगा। आई विल यूज दिस। therefore what is the balance, बैलेंस अभी कौन सा रह गया 300 at the rate of 15, then 200 at the rate of 15। ओके, तो ये आपका बैलेंस इज ऑन 5th मार्च, बैलेंस इज ऑन 5th मार्च, बैलेंस इज ऑन 5th मार्च। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, 5th मार्च के बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डेट कौन सा है, नेक्स्ट डेट है 10th मार्च, 10th मार्च। 10th मार्च में स्टूडेंट क्या किया, 10th मार्च में 100 का इशू किया। तो अभी आप ही मुझे बताओ 100 वाला कौन सा इशू करेंगे हम, पहले पहला कौन सा इशू करेंगे, ए लॉट वाला, कौन सा लॉट वाला, ए लॉट वाला, ए लॉट वाला हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो 300 में से 100 हम इशू करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना, ये मेरा पहले वाला जो पहला वो यूज करूंगा ना मैं। तो 300 जो है लॉट है, इसमें से मैं 100 दूंगा, तो 300 इंटू 100 माइनस 100 दैट इज 15, तो कितना हुआ 1000, ये कितना बचा 200, और ये 200 का लॉट जो है वैसे के वैसे रहेगा। ठीक, तो वैसे के वैसे रहेगा। तो ये हो गया आपका 10th का। ये हो गया 10th मार्च का। 10th मार्च के बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, 17 मार्च। 17 मार्च को हमने क्या किया, 17 मार्च 2018, 17 मार्च 2018 को हमने क्या किया स्टूडेंट, 300 का परचेस किया, 300 एट द रेट ऑफ, परचेस कितने में किया 20 रुपीज में, तो कितना होगा स्टूडेंट 30 इंटू 300 इंटू 20, कितने में किया हमने परचेस, व्हाट इज द परचेस प्राइस स्टूडेंट, कितने में आएगा स्टूडेंट, बोलो। 20 में परचेस किया ना, तो कितना होगा 6000। ओके 6000 परचेस किया, तो चलो नेक्स्ट करो क्या है, कितना होगा स्टॉक अभी मुझे बताओ, कितना स्टॉक होगा, ये पहला होगा 200 वाला है एट द रेट ऑफ 15, दैट इज 3000, देन उसके बाद में 200 अगेन 15, 3000, उसके बाद में फिर से 300 100 ऑफ 20 होगा 6000, 6000। ओके, सो दिस इज फॉर, हेलो
Okay, so 17 March, that is total is 200 का lot का at the rate of 15, 200 lot of 15, 300 into 20, 6,000. Okay. Next, what is the next? Next, there is one adjustment. Okay, there is a one adjustment. What is the adjustment? Now, 18th of March. What is the 18th of March? क्या हो गया? 18th of March 2018, 40 units were found damaged and had to be discarded. So 18th of March, you have to mention 18th of March 2018. How many units, student? कितना units? Discarded हुआ 40 units. तो आपको मैंने बताया था अभी before this, इसके पहले मैंने presentation बताया, उसमें बताया कि any unit discarded होता है. तो कहाँ पे लेते हैं हम? किसमें लेते हैं student? Issue column में लेते हैं. Okay. तो and उसमें क्या बोला है student? 40 units were found damaged and had to be discarded. Okay. Now student, very important thing. Now again, this is a presumption that you have to purchase, you have to issue price कौन सा होगा student? So that is always at the first issue. Okay. Just consider as a damage जो हुआ है पहले इसका है ऐसा consider करके that is issue at a 50. That is also 40 into 15, that is 600. Okay. Now in this case again 200 में से 40 damage हो गया तो कितना बचा 160. 160 at the rate of 15. So ये आएगा आपका, ये आएगा पहले लॉट का. देन दूसरा लॉट जो आपका है वैसे के वैसे रहेगा. दैट इज 200, देन 15, देन 3000, उसके बाद में आएगा 300, देन 20, 6000. Now we are moving toward another. Okay, ये हो गया आपका 18 का. कलर मीडियम. Okay. Now what is the next one after 18th March के बाद में? What is the date? 18 मार्च के बाद में हमने 20th मार्च को, 20 मार्च को हमने क्या किया है? इशू किया है. 20 मार्च को हमने इशू किया. कितना इशू किया हमने? 250 यूनिट्स का किया. 250 यूनिट्स का किया. अभी क्यों 50 का यूनिट्स का करते करते पहले क्या करने का देखो स्टूडेंट. पहला हम 160 का इशू करेंगे. 250 अभी इशू करने का है ना, तो पहला कौन सा करेंगे? ये करेंगे, ये वाला करेंगे. पहला 160 at the rate of 15, 2400. अभी 160 में से उसके बाद में कितना चाहिए 250 के लिए? 250 माइनस 160, तो बैलेंस कितना आएगा स्टूडेंट? बैलेंस 90. तो 90 यूनिट्स कौन से लॉट से लेंगे? ये लॉट से लेंगे, ये लॉट से लेंगे. तो 90 at the rate of 15 is equal to, what is equal to? चलो मल्टीप्लाई करो, कितना है? 1350. 1350. अभी देखो पहला लॉट वाला गया, ए गया, 160 वाला गया. इसमें से 200 में से 90 गया तो कितना बचा? 110 at the rate of 15. कितना गया? 1650. और ये जो आपका बैलेंस है 300 ऐसे की वैसे की वैसा है. 300 तो टोटल कितना आता है स्टूडेंट? इसका टोटल करो. इसका टोटल कितना है? 14. इसका कितना वैल्यू आता है? 7650. This is your valuation of closing stock as per FIFO method. As per FIFO method. This is total. You can mention the total. Okay. एक बार ये प्रॉब्लम देखो स्टूडेंट्स, देन सेकंड मेथड में स्टार्ट करता हूँ.
ओके, नाउ स्टूडेंट सेकंड मेथड जो है दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। नाउ यहाँ पे दैट मींस फॉर्मेट अगर देखा तो फॉर्मेट में यहाँ पे मैं लेता हूँ ये इसका जो है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज मेथड नाउ द फॉर्मेट अगर आपने देखा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड का एवरेज मेथड का सेम है, ओनली ये जो रेट है नाउ सी देखो यूनिट रेट इंक्रीज यूनिट रेट इंक्रीज यूनिट रेट इंक्रीज ओके सेम फॉर्मूला है लेकिन वैल्यूएशन इज डिफरेंट। यू हैव टू कंसीडर द इशू ऑलवेज एट अ वेटेड कॉस्ट। हमने इधर क्या किया जो पर्टिकुलर यूनिट का जो भी था उसको हमने रेट उधर लिया ओके लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा स्टूडेंट्स। यू हैव टू कंसीडर द टोटल for this and you have to consider the overall average of this price as an issue price. Okay, that I am going to explain with the help of the example. Therefore, you must understand this. This will be help you to understand this. Now see one by one. We'll see one by one. What is the first one? देखो सुनो पहला क्या आएगा वन सब करता हूँ आपको समझ में चलो what is the first one? First one is the 3rd March. The first March. First March. First March. First March को क्या किया हमने बैलेंस है बैलेंस इधर आएगा कितना बैलेंस है 400 कितने का है 14 रुपीज का तो कॉमन है 5600 5600 उसके बाद में क्या किया स्टूडेंट 3rd March आएगा 400 into 14 5600. What is the next date? Next date is the 2nd March. 2nd March 2018. 2nd March 2018 को क्या किया आपने कितना परचेस किया 350 अभी देखो अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा अभी शुड वी फाइंड आउट द बैलेंस सिंपल सिंपल बैलेंस में क्या होगा स्टूडेंट 400 plus 300 is equal to 700 and 5600 plus 4500 that is equal to 10100 समझा बैलेंस क्या होगा 400 यूनिट्स प्लस अपने इश्यू किया 300 तो 700 हो गया 5600 वैल्यू प्लस 4500 टोटल इज 10100 तो व्हाट इज द एवरेज रेट कितना आएगा
अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। ये भी उन्होंने बोला कि 2 ही डेसिमल में होना चाहिए, इसलिए 2 डेसिमल 14.42। हमने क्या किया स्टूडेंट इधर, हमने क्या किया, दोनों का टोटल किया, यूनिट का टोटल किया, वैल्यू का टोटल किया, ओके। What is the next one? Then 4th March, 4th मार्च को क्या किया स्टूडेंट हमने, 4th मार्च को हमने फिर से परचेस किया 200 का एट द रेट ऑफ 15 आया, ठीक है। अभी क्लोजिंग वैल्यू कैसे आएगा मुझे बताओ, कोई बताएगा मुझे कैसे आएगा, कैसे आएगा, यस 700 प्लस 200 500, 11,000 10,100 प्लस 3,000 कितना आएगा 13,100, और ये कितना आएगा स्टूडेंट बताओ, दिस divided by this 14.56 फोर्थ का आएगा, फोर्थ का। ओके, now what is the next one, third, that is the 5th मार्च को आपने क्या किया, इशू किया, इशू कितना किया स्टूडेंट, व्हाट इज क्वांटिटी इशूड 400, कितना किया 400 का इशू किया, बराबर ना, 400 का इशू किया, अभी इशू किया आपने 400 का, चलो 400 इशू किया, कितने में करने के इशू प्राइस क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज योर इशू प्राइस द लेटेस्ट वन 14.6 मीन्स बिफोर मेथड में हमने क्या किया, लॉट में से जितना भी प्राइस जो लॉट का है वो हमने इधर दिया, इशू किया 14 में, मीन्स इसका कितना था, इसका कितना था 400 का 14 रुपीज से इधर वैल्यू किया, लेकिन यहाँ में 400 को वैल्यू 14 रुपीज से नहीं किया, लेकिन हमने एवरेज रेट जो है उसमें से कैलकुलेट करके लिया 14। Okay. Now what is the balance? Now find out the balance. 900 minus 400. कितना हुआ 900 minus 400? 500. बराबर ना 500. And 13,100 minus 13,100. 13,100 minus 70%. इसका बैलेंस कितना है? इतना ही आएगा डिवाइडेड बाय 14. तो ऑन एन एवरेज उतना ही आता है, मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज you can mention 14.56 only. Put down the 7 plus 7. ये होगा इसका। Now what is the next one after 5th March होने के बाद में 10th March। 10th March को क्या किया बताओ, 10th March को अगेन इशू है, कितना इशू है 100 का, चलो 100 रेट ऑफ 14.56 is equal to 1456, इधर से 500 से 100 गया तो कितना होगा 400, यहाँ पे कैलकुलेट करो, प्लस माइनस 5822 5820
7 to 7 8 अपन 7 to 7 8 5 to 3 divided करो this divided by this वही आ गया वही 10th मार्च के बाद में 17 मार्च 2018 क्या किया उसके बाद में क्या किया 17 मार्च को 300 परचेस किया ना एट द रेट ऑफ कितने में परचेस किया था 300 20 में बराबर ना बैलेंस देखो कितना होगा 400 plus 300 that is 700 and 5823 comes to then 18 March again damage 40 units damage at the rate of 16.89 16.89 this multiplied by this 700 minus 40 now the 660 660 और ये कितना होगा 11,000 minus 76 676 11,146 and this is comes to 16.8 ना उसके बाद में 18 मार्च को लाएंगे डायरेक्टली क्या क्या सुना आपने 250 यूनिट का किया इशू किया ओके इशू किया तो कैसे करेंगे और क्या आएगा 16.89 sorry 250 16.89 422 therefore minus करो 660 minus 250 that is comes to 410 and this is equal to 11,146 minus 42 is equal to 6924. You can find out the average also. Dividing this, you will get very same 16.89. Okay, what is your total? Total is comes to very same. Total, but the rate of the valuation is different 693. So unit of the both the case 410 410 both the case and 7650 and here is the 6924. As per the FIFO method, the value of the stock is comes to 7,650. As per the weighted average method, the value of stock is comes to 6924. It comes to 69. I hope all of you understand, and I hope that you understand about the methods. That is FIFO method and weighted average method. I'm sharing you the two problems for your homework. At a home, you just practice that
Okay. So I'm sharing the two problems on your Google Classroom. Google Classroom में मैं आपको शेयर करूँगा दोनों प्रॉब्लम प्रैक्टिकल सॉल्व जो आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है या कल दिखाने का है. Tomorrow we have lectures, no? Okay. So I think that this is this thing.